Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we're going to learn about a very important topic of the marketing TYBMS students, and the same topic is useful for all the marketing students too, and the topic is features and characteristics of retail management. Before going to start this topic, I would like to inform you in our previous video we have already covered the meaning and the definition part of the retail management. Because what is management and what is retail, we need to be know about all these things, then only you can start this topic. So I have already discussed that the word retail is derived from the French word which is retailer, which means to cut the piece off or to break the bulk. You know what, in simple term we can say it is nothing but the final transaction with the customers. इसका मतलब ये हुआ कि रिटेलियर ये जो वर्ड लिया गया है फ्रेंच से, फ्रेंच वर्ड, ठीक है, इसका मतलब ये है टू कट द पीस ऑफ और टू ब्रेक द बल्क। मतलब जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी स्टोरेज होता है, उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द फाइनल ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर्स इज नथिंग बट द रिटेल, and management is nothing but to manage the retail activity or to manage the distribution activity. Okay, then we have meaning part. यहाँ पर मैंने just mention किया है, you can take the screenshot of that page and यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसा कि meaning बताया है, the word retail is derived from the French word retailer which means to cut the piece off or to break bulk. In simple words it means ऑफ फाइनल ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर्स। मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, टोटल वी हैव 4 pointers here, as you can see on the screen, but I would like to inform you that only 4 pointers are not enough for the 15 marks question. Yes, if the question are coming for the 7 to 8 marks, so you can write this, okay, along with the introduction and the meaning and the definition part. So friends, in my previous video I have already shared the definition also according to Philip Kotler, so please just go and check that video too. Otherwise I'm going to share the link in the description box for your convenience. So total we have 4 pointers here, as you can see on the screen, for the features and characteristics of retail management. First one is direct interaction with the customers, point of purchase, display and promotion, lower average amount of sales transactions, location, large numbers of retail business units. Okay, so total we have 4 pointers here. So first one is direct interaction with the customers. Yes, exactly, because retailing is the process when we are, or you know what, the retailer can easily or can directly contact with the final customers to supply their product. ठीक है, सो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगेन मैंने यहाँ पर पूरे पॉइंटर्स को एलॉबरेट करके यहाँ पर मेंशन किया है जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स हैं. सो फर्स्ट पॉइंट विच इज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स. चलिए रीड करते हैं. यहाँ पर ये हुआ है कि रिटेलिंग, सी आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन को देखा है. डिस्ट्रीब्यूशन चेन में पहले मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स हु प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, जो गुड्स को बनाते हैं. फिर आता है होलसेलर, जो बल्क अमाउंट में फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड परचेज करता है गुड्स को रिटेलर तक पहुंचाने के लिए. मतलब और रिटेलर के बाद आता है कस्टमर. मतलब 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर. पहला होता है मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और उसके बाद आता है कस्टमर, फाइनल कस्टमर. ठीक है, सो यहाँ पर रिटेलर ही एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसा सोर्स है, रिटेल शॉप्स के द्वारा ही हम फाइनल कस्टमर तक गुड्स को पहुँचा सकते हैं. सो इस वजह से ये पॉइंट दिया गया कि दिस इज अ फीचर पॉइंट ऑफ द रिटेलिंग दैट वी कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद आवर फाइनल कस्टमर्स. Retailing involves a direct interaction with end users. End users is nothing but customer of goods and services. In the value chain, retailers act as an intermediaries between the end users and the suppliers, such as wholesalers and the manufacturers. मतलब आप रिटेलर को इंटरमीडियरीज भी कह सकते हैं, मिडल मैन कह सकते हैं, जो क्या करता है, इंटरमीडिएट करता है. मतलब एक मिडल मैन होता है जो गुड्स को पहुंचाता है सप्लायर से फाइनल कस्टमर तक. ठीक है, देन
यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स एंड द मार्केटर्स टू रीडिफाइन देयर प्रोडक्ट एंड चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। अब क्या होता है, रिटेलर इज द ओनली पर्सन हु कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट और इंटरेक्ट विद द फाइनल कस्टमर, सो ही कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम देयर ऑल्सो, है ना। मतलब जो है रिटेलर अपने जो फाइनल कस्टमर से फीडबैक दे सकता है, ले सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, और यही रीज़न है कि मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स जो है रिटेलर के फीडबैक से, मतलब रिटेलर का फीडबैक इज़ नथिंग बट कस्टमर का फीडबैक, क्योंकि रिटेलर विल ओनली पास ऑन द कस्टमर्स फीडबैक टू द मैन्युफैक्चरर्स टू द मार्केटर्स। सो उस बेस पे मार्केटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कैन रीडिफाइन देयर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे भी कैसा होता है, कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, सो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरर और मार्केटर्स को कौन बताता है, रिटेलर। सो रिटेलर प्लेज इज अ वेरी वाइटल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। Then we have next point, that is point of purchase, display and promotion. Point of purchase, point of display, point of purchase, merchandise, store layout and catalog becomes important. Impulse goods like chocolates, snack foods and magazines can sell much more quickly if they are placed in a highly visibility and high traffic location. क्या होता है ना पॉइंट ऑफ परचेज, क्या होता है, नॉर्मली आपने अपने रिटेल शॉप्स देखी होंगी, है ना, जो मॉल में भी छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स आपको देखने मिलते हैं, नॉर्मल आप मार्केट में जाते हैं रिटेल आउटलेट्स देखने मिलते हैं, नॉर्मल अपने लोकल एरियाज़ में भी छोटी छोटी जो दुकानें होती है, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिटेल शॉप। सो रिटेल शॉप में पॉइंट ऑफ परचेज होता है, डिस्प्ले होता है, जिसके द्वारा हम गुड्स को प्रमोट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर ऑल्सो। जैसे क्या होता है, आप देखते हो इम्पल्स गुड्स होते हैं, लाइक जो चॉकलेट्स होते हैं, स्नैक फूड्स होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे मैगजीन्स को रीड आउट करना। सो ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, अगर कोई न्यू आइटम्स इसका लॉन्च हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है, सो रिटेलर या जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्ले पे इसको दिखाते हैं कि कस्टमर को पता चले कि ये न्यू चीज़ आई है उनकी शॉप में। दैट इज़ नथिंग बट वी आर क्रिएटिंग पॉइंट ऑफ परचेज, वी आर अट्रैक्टिंग आवर कस्टमर टूवर्ड्स द न्यू लॉन्च प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। देन वी हैव, जैसे कि आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, मैनिक्विन्स होते हैं, उस पर अगर कोई न्यू लेटेस्ट पैटर्न का अगर गारमेंट्स आया है, यानी कि आपके क्लॉथ्स आए हैं, सो वैसे सिनारियो में क्या किया जाता है, उसको डमी या फिर मैनिक्विन्स पे पहनाया जाता है ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ परचेज एंड डिस्प्ले एंड प्रमोशन, ओके। देन वी हैव लोअर एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो क्या होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉर्मली क्या होता है, एज अ कंज्यूमर वी आर डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग विद द रिटेलर्स ओनली, सो मैनी कंज्यूमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशंस, है ना। बहुत सारे क्या होता है, कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी ही खरीदते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए। सो स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए एज अ कस्टमर और कंज्यूमर आई कैन नॉट डायरेक्टली विद द आई कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, मार्केटर और होलसेलर, आई हैव टू गो विद द रिटेलर बिकॉज द रिटेलर ओनली पर्सन हु सेल्स द प्रोडक्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू अस, ठीक है। सो जो रिटेल शॉप होती है वहाँ पर हमें लोअर एवरेज प्राइस में भी प्रोडक्ट मिल जाता है, भले से आप लो यूनिट्स ही क्यों ना खरीद रहे हो, है ना। अगर एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदना है, आप आपकी लोकल शॉप से जाके एक बिस्किट खरीद सकते हो, लेकिन आप पार्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, सो दे विल नॉट गिव यू 1 बिस्किट और 1 यूनिट ऑफ बिस्किट, दे विल आस्क यू अबाउट द लॉट साइज, मतलब कि एक लॉट होता है जिसमें 5000 बिस्किट्स होंगी या 1000 बिस्किट्स होंगी, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको परचेज करना पड़ेगा। बट फॉर द सिंगल और द स्मॉल क्वांटिटी यू हैव टू गो विद द रिटेलर्स। सो यहाँ पर हम लोग जो है स्मॉल एवरेज ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं रिटेलर के थ्रू। आप देखते हो बहुत सारे इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो डेली बेसिस पे ग्रोसरी आइटम्स भी खरीदते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेंट पे जो मेन पर्सन्स रहते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ अगर रहते हैं, सो दिन भर वो काम करते हैं, रात में आने के बाद ग्रोसरी आइटम मतलब राइस स्वीट वगैरह वो 1 kg का डेली बेसिस पे रिटेल शॉप से खरीदते हैं और उसको बनाते हैं। इधर वी आर परचेजिंग ग्रोसरी आइटम्स ऑन अ मंथली बेसिस और लाइक क्वार्टरली और द 15 days या क्वार्टरली बेसिस पे। बट बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी हाउस होल्ड कंजम्पशन है जहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स को जो है डेली बेसिस पे खरीदा जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द रिटेल शॉप, ठीक है। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज लोकेशन, लार्ज नंबर्स ऑफ रिटेल बिजनेस यूनिट। See, location plays a very vital role.
क्या होता है ना, अगर आप देखोगे सो ह्यूज नंबर्स ऑफ, और आई कैन से हाई नंबर्स ऑफ रिटेल शॉप्स होते हैं हमारे एरियाज़ में। आप देखो कदम कदम पे नॉर्मली आपको जो रिटेल शॉप मिलती है। सो एज अ रिटेलर आई हैव टू बी चूज द लोकेशन वेरी प्रॉपरली और इन अ एफिशिएंट मैनर, बिकॉज क्या होगा ना, लोकेशन ऑफ रिटेल स्टोर प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंपेयर टू अदर बिजनेस यूनिट्स। अदर बिजनेस यूनिट्स होती है, उसके अलावा रिटेल शॉप को लोकेशन फाइंड आउट करना इज़ वेरी टफ ऑल्सो, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ you are choosing the location for your shop as a retailer. Retailer considered as a factors like potential demand, supply of merchandise, in store images, reduce related factors in locating the retail outlets, the number of operating units in retails। यानी कि ये हुआ कि लार्ज नंबर्स ऑफ रिटेल बिजनेस यूनिट्स होती है, इस वजह से लोकेशन को प्रॉपर चुनना है जहाँ पर कस्टमर भी इजीली एक्सेस कर सके, और एक एक जोग्राफिक एरिया में लोकेशन होना चाहिए, यानी कि रिटेल शॉप्स होनी चाहिए, और आपका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो इजी एक्सेसिबल हो। मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला अगर पार्ट अगर हम देख रहे हैं, सो आपको इस तरीके से एक प्लेस को चूज़ करना है जहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले भी क्लाइंट्स जो है आ सके और आपके यहाँ पर आके स्टोर से गुड्स को परचेज कर सके। सो इससे कस्टमर का एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कस्टमर को अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स मिल जाएगा बिकॉज ऑफ the retail shop ka location. So friends, we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. Keep supporting, keep watching. Thank you for watching. Do like and subscribe my channel.